Hello, everyone. Welcome back to IAS Cafe. My name is Priyanka. Let us begin with today's decoding session of the Hindu, 8th of August 2023. From today's newspaper, we would be covering two important topics. The one is about the Mine and Minerals Amendment Bill 2023. As it is very lengthy topic, so we would be discussing only a few topics today. Second is about the superconductor. It was in the news last year as well. Number of questions were asked with regards to the applications of the superconductor, even about the lithium in the prelims of IAS examination. So before we begin the detailed analysis or the detailed discussion regarding these topics, I would like to request all of you to please do subscribe our channel IAS Cafe and like and share our videos so that we could help more aspirants to complete your UPSC journey in a very easy manner. Starting with the first topic, it is about the Mines and Minerals Amendment Bill 2023. If I talk about the objective of this editorial or the overview, what the writer wants to say in this is regarding the amendment bill is all about to include the private players, in the exploration of the critical and the seated materials, the deep seated materials, minerals in the country, right? And then the writer is saying that why India is importing so much minerals from outside, or why there is so much need, why there is requirement to include the private players in this mines and mineral field. So this is about the writer is saying. So first thing, recently what happened, I think it was around 4th of August, so there is no point of remembering it. Parliament passed the Mines and Minerals Amendment Bill 2023. So this is the reason that it is in the news. So, to attract the private sector investment in the exploration of the critical and deep seated minerals in the country. Actually, now, what are the critical or the deep seated minerals? डीप सीटेड मिनरल्स जैसे कि गोल्ड हो गया, इनका एक्सप्लोरेशन बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत ही डिफिकल्ट प्रोसेस है. तो दे आर लाइक योर डीप सीटेड मिनरल्स. तो ये जो बिल आया है जो कि पार्लियामेंट में पास हो चुका है, इस बिल ने क्या किया है, 6 ऐसे मिनरल्स जो है उनको क्रिटिकल और जो स्ट्रेटेजिक मिनरल्स है उसकी लिस्ट में डाल दिया है. क्रिटिकल मिनरल्स वो हो जाते हैं जो कंट्रीज के इंफ्रास्ट्रक्चर, कंट्री के जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो ये जो 6 मिनरल्स है जिसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट लिथियम भी आ जाता है, तो अगर मैं कह रही हूँ कि ये क्रिटिकल मिनरल की लिस्ट में डाल दिया गया है, तो यानी कि इसका कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रहा होगा, राइट? इन कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ के लिए या फिर इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए. कैसे? लिथियम जो है एक बहुत ही क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक मिनरल्स की कैटेगरी में आता है, राइट? इससे पहले ये मिनरल्स जो है आपके पास एटॉमिक मिनरल की कैटेगरी में आते थे, यानी कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ओन एंटिटीज जो है इस पे काम कर सकती थी. इट वाज रेस्ट्रिक्टेड ओनली टू द गवर्नमेंट. तो मैंने टॉक अबाउट द लिथियम, इसको क्रिटिकल में डाला है, तो लिथियम का बहुत ही ज्यादा एप्लीकेशन जो है अभी जोरों शोरों से आपके एग्जामिनेशन में पूछा भी जाता है, न्यूज़पेपर भी कवर करता है कि आपके पास लिथियम बैटरीज है, लिथियम बैटरीज की जो कार है वो हम यूज कर सकते हैं ताकि पोल्यूशन कम हो. जो हमारा टारगेट है नेट जीरो एमिशन को क्रॉस करना, तो अल्टीमेटली अगर आपको पोल्यूशन कम करना है तो आप लिथियम की तरफ शिफ्ट हो सकते हो, एंड मेनी मोर सच थिंग्स, राइट? So this is something about the lithium. But राइटर कह रहा है कि कितना अमाउंट ऑफ क्रिटिकल मिनरल जो है हमने इंपोर्ट किया है, हाउ मच ऑफ इंडिया critical minerals are imported, right? So a variety of minerals besides those used in critical fuel, creating the fuel, are crucial to a country's manufacture, infrastructure and advancement. देखो कहीं ना कहीं आपको डेफिनेशन देने की कोशिश कर रहा है, ये आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है कि कोई मिनरल, ठीक है, एक है आपके पास, आप फ्यूल बनाने में जो मिनरल आपके काम आ रहा है, तो फ्यूल को बहुत ज्यादा तवज्जो दी जाती है कंट्री के कंटेक्स्ट में. इट इज गिवन अ ह्यूज इंपॉर्टेंस
in the country's context, but the writer is saying कि सिर्फ फ्यूल नहीं और भी बहुत सारी मिनरल्स की वैरायटी है जिनको कंट्री के मैन्युफैक्चरिंग के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए या फिर ग्रोथ एंड एडवांसमेंट के लिए वो बहुत ही ज्यादा क्रूशल होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसको वो नाम दे रहे हैं क्रिटिकल मिनरल्स. So best example as usual that is the lithium. तो उसी के साथ राइटर कह रहा है कि जो क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन है कंट्रीज का, कि सब लोगों ने, एक तो आपके पास सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आपको अभी तक तो पता चल जाना चाहिए 2015 में अडॉप्ट किया था, क्या कि 2030 तक हमने कम से कम 17 गोल्स जो है डिसाइड किए हैं जिसमें हमको 2030 तक इसको पूरे करने हैं और इसको एजेंडा 2030 के नाम से भी जाना जाता है. इसी के अंदर आपके पास जो पोल्यूशन फ्री है उसका भी एक रिलेटेड है, क्लाइमेट से रिलेटेड भी एक गोल है. तो अगर आपको एज ए क्लाइमेट चेंज पॉलिसी और द UNFCCC नेटवर्क, द कन्वेंशन दैट इज द यूनाइटेड नेशन convention related to the climate change, which was signed in the 1992, the Rio de Janeiro, Brazil meeting, the Earth Summit meeting, right? तो वहां पे अगर आपको नेट जीरो एमिशन को के गोल को अगर कंप्लीट करना है तो कहीं ना कहीं आपको ये जो क्रूशियल एलिमेंट या मिनरल्स की जो लिस्ट है उसमें लिथियम जैसे मिनरल को ऐड करना पड़ेगा. इसको व्हाइट गोल्ड का नाम भी दिया जाता है और इसी के साथ कोबाल्ट, ग्रेफाइट या और भी रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो है इस लिस्ट में आ जाते हैं. ये बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं उनके लिए. अब सेमीकंडक्टर क्या होता है इसको हम बहुत जल्द आगे आने वाले लेक्चर्स में या फिर स्लाइड्स में कवर करने वाले हैं. ये इनके एप्लीकेशन जो इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होते हैं, डिफेंस के शॉपर्स वगैरह में यूज होते हैं, एरोस्पेस, टेलीकम्युनिकेशन एंड सो ऑन. So this is, the direction in which you can think how important is lithium in the today's modern world. और अगर ऐसे minerals, the lack of availability of such crucial elements or minerals we talk about, so it leads to ultimately dependency. अगर इंडिया में ऐसे मिनरल्स का हम एक्सप्लोरेशन नहीं कर पा रहे क्योंकि बहुत ज्यादा क्रूशियल है हमारी ग्रोथ के लिए, तो कहीं ना कहीं हम उसको बाहर की कंट्री से इंपोर्ट कर रहे होंगे. दैट शोज अवर इंपोर्ट डिपेंडेंसी, दैट शोज कि हमारी सप्लाई चेन में वल्नरेबिलिटी है. इवन जो सप्लाई है उसका डिस्ट्रप्शन जो यहाँ पे देखा जाता है. एग्जाम्पल के तौर पे देख लो, जो चाइना है has a majority of ownership of cobalt finds in the Democratic Republic of Congo. So Africa में there is a place, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जहां पे पूरे वर्ल्ड का 70% जो कोबाल्ट है वो माइंड किया जाता है या फिर वहां से उसको निकाला जाता है. उस कोबाल्ट पे चाइना का सबसे ज्यादा ओनरशिप है. तो कहीं ना कहीं हमारी डिपेंडेंसी या तो चाइना पे है या फिर रिपब्लिकन ऑफ कॉन्गो पे, बिकॉज इट इज नॉट विथ रिस्पेक्ट टू द इंडिया. करेक्ट. So China also has by far the largest amount of reserves of the rare earth elements of any country in the world, followed by Vietnam, Brazil और Russia. अब डिपेंडेंसी है वो तो अलग बात है. चाइना पर डिपेंडेंसी वो तो ब्लंडर है, चाइना के साथ तो वैसे भी नहीं बनती, बॉर्डर डिस्प्यूट होती रहती है इंडिया की. तो मेजर इकोनॉमीज जैसे कि यूएस है, यूके है या फिर यूरोपियन यूनियन है इन द रीसेंट पास्ट have moved to secure the supply chain resilience for such minerals and to reduce the reliance for the availability of the countries like China. अब इसी से रिलेटेड जो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस है, जस्ट गिव मी अ सेकंड. ओके. तो इसी को लेके हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ माइंड है उन्होंने कुछ डेटा दिया दैट इंडिया is 100% import dependent on the countries on like China, Russia, Australia, South Africa, and US for the supply of critical minerals like lithium, cobalt, nickel, niobium, beryllium, and also for the deep sea minerals. तो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस का एक डेटा बोलता है या उनका ऑब्जर्वेशन जो है वो बोलता है कि इंडिया 100%
बाहर की कंट्रीज पर डिपेंडेंट है क्रिटिकल मिनरल्स के लिए, और जो डीप सीटेड मिनरल्स है उनके लिए भी। 2022 और 23 की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया ने कम से कम 12 लाख टन जो कॉपर है वो क्या किया है, वर्थ ऑफ 27,000 crore एज पर द ऑफिशियल फिगर्स उन्होंने इंपोर्ट किया है। तो अब क्वेश्चन उठता है कि ठीक है, इंडिया के लिए क्रिटिकल मिनरल का होना जरूरी है, एक्सप्लोरेशन होना जरूरी है, इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम करना जरूरी है, बट यहाँ प्राइवेट सेक्टर कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा? जो बिल है प्राइवेट सेक्टर को ऐड करने के बारे में बात कर रहा है। तो नाउ अवर क्वेश्चन इज व्हाट प्राइवेट सेक्टर विल डू? देखो, इंडिया का जो बहुत ही यूनिक जियोलॉजिकल और टेक्टोनिक सेटिंग है, ये बहुत ही ज्यादा कंडक्टिव है, हमारे पास बहुत पोटेंशियल है मिनरल रिसोर्स की एक्सप्लोरेशन के लिए। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बहुत ही इंपॉर्टेंट जो मिनरल है उसको एक्सप्लोर किया, करेक्ट? तो वी आर हैविंग अ ह्यूज पोटेंशियल। तो इसके लिए जो प्राइमरी स्टेप है डिस्कवरिंग द मिनरल रिसोर्सेज एंड इवेंचुअली द फाइंडिंग इकोनॉमिकली वाइबल रिजर्व, वो है आपके पास मिनरल एक्सप्लोरेशन, जो कि माइनिंग की अलग अलग स्टेजेस से आती है। और ये जो स्टेजेस है इसको यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ने डिवाइड किया है 4 पार्ट्स में। सबसे पहले होता है G4, दैट इज द रिकनेसेंस। तो G3, दैट इज द प्रोस्पेक्टिंग। G2, द जनरल एक्सप्लोरेशन। एंड G1, दैट इज द डिटेल्ड एक्सप्लोरेशन। और एस्टिमेशन के बारे में बात करें, इंडिया के हाल बहुत बुरे हैं। इंडिया ने सिर्फ और सिर्फ 10% ऑफ द ऑब्वियस जियोलॉजिकल पोटेंशियल एक्सप्लोर किया है, 2% से भी कम उन्होंने माइन किया है, और कंट्री जो है 1% से कम इसको ग्लोबल मिनरल एक्सप्लोरेशन बजट में स्पेंड कर पाती। मोस्ट ऑफ द जितनी भी आपके पास एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट्स हैं वो गवर्नमेंट एजेंसीज के थ्रू हुए हैं, जैसे कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, PSUs है, MECL है। तो इंडिया की जो माइनिंग पॉलिसी है had kept the greenfield exploration mineral out of the purview of private sector। देखो, greenfield मतलब पहला हक, राइट? अगर मैं बोल रही हूँ प्राइवेट सेक्टर के पास नहीं है, which means that they could only get licenses that had been explored by the government entities। तो जो मिनरल रिसोर्सेज से सरकार एक्सप्लोर कर चुका है उसके बाद उनको क्या मिलता है कि अब आप लाइसेंस आपको मिल चुका है, यानी उनके पास ग्रीन फील्ड नहीं है। ग्रीन फील्ड होता है तो बिना गवर्नमेंट के एक्सप्लोरेशन के वो डायरेक्टली वहां पे जा सकते हैं, और इसी के साथ एडिक्वेट इंसेंटिव्स भी नहीं दिए जाते। तो अब यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर के फेवर में बोला गया है कि जब आप मिनरल्स को एक्सप्लोर करते हो तो वहां पे आपको बहुत सारी टेक्निक की जरूरत होती है, जैसे कि एरियल सर्वेस है, जियोलॉजिकल मैपिंग है, जियोकेमिकल एनालिसिस है, और बहुत ज्यादा स्पेशलाइज टेक्निक्स है, जिसमें कहीं ना कहीं जो कमर्शियल कंपनीज है या फिर जो प्राइवेट सेक्टर्स है दे आर मोर एफिशिएंट इन डूइंग दैट। Indian PSUs were relatively better positioned to explore the superficial and the bulky minerals जैसे कि कोल है या फिर आयरन। तो क्या इंडिया की माइनिंग पॉलिसी कंडक्टिव है फॉर द प्राइवेट पार्टिसिपेशन? जी हाँ, ये नीड हमें बहुत पहले ही महसूस हो गई थी। देखो, इंडिया में जो माइंस को लेके एक्ट है वो 1957 के अंदर आया था, और उसके बाद इसको बहुत बार अमेंड किया 2015 में, 2020 में, 2021 के अंदर। तो यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को लाना चाहिए, इसकी नीड हमें बहुत पहले ही महसूस हो गई थी। बट कंसर्न क्या है? हर बिल के साथ अपने कंसर्न्स होते हैं। यहाँ पे बात हो रही है फेवरेटिज्म की, मिसयूज होने की, राइट? कि ये जो एक्ट है वो सिर्फ प्राइवेट कंपनीज को अलाउ करेगा टू पार्टिसिपेट इन द गवर्नमेंट ऑप्शंस फॉर द माइनिंग एंड लीजेस। तो ऑब्वियसली इसमें जब भी प्राइवेट सेक्टर की बात आती है तो इसमें फेवरेटिज्म आता है, करप्शन के केसेस आते हैं, मिसयूज के केसेस आते हैं, मेनी मोर कंसर्न्स आर देयर। तो किस तरह से आप प्राइवेट व्यूज को इनकरेज कर सकते हो? देखो, सबसे पहले यहाँ पे जो बिल है, ठीक है, हाउ डज द बिल इनकरेज? इस बिल में क्या हुआ है कि सबसे पहले इन्होंने क्या किया, 6 ऐसे मिनरल्स जो पहले एटॉमिक मिनरल्स की कैटेगरीज में आते थे, ठीक है, उनको ये लेके आ गए कमर्शियली माइंड में कि अब उनपे जो है प्राइवेट ओनर्स का हक हो सकता है। तो बीइंग एटॉमिक मिनरल लिस्ट, एक्सप्लोरेशन था इनका, वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एंटिटीज के पास था।
लेकिन अब क्या हो गया है, इनको आप एटॉमिक मिनरल की कैटेगरी से बाहर निकाल दिए हो, तो अब इस पर प्राइवेट ओनर्स भी काम कर सकते हैं। ठीक है। सेकेंडली, ये जो भी एक्टिविटीज प्रोहिबिटेड थी, ड्रिलिंग, ट्रेंचिंग, वो सब यहाँ पे अलाउ कर दी गई है। और तीसरा, फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years they will be granted by the state government by way of competitive bidding. So this is how this bill talks, about the encouraging the public, not public, the private players in this category. So what are the possible issues? इश्यूज यही है कि आप इसको जब कोई अभी एक्सप्लोर ही नहीं हुआ है, उससे पहले आप इसके ऊपर कैसे डिसाइड कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द सेकेंड टॉपिक व्हिच टॉक्स अबाउट द सुपर कंडक्टर। अगर आप सभी लोग 9वीं और 10वीं कक्षा पास हो, जो कि मैं उम्मीद करती हूँ दैट आप लोग ने पास किया है, चाहे अच्छे मार्क्स से या बुरे मार्क्स से, आप सभी लोगों ने साइंस में दो टर्म्स पढ़े होंगे। एक होता है कंडक्टर और एक होता है इंसुलेटर। तो इंसुलेटर्स वो होते हैं which do not allow to pass electricity through them or heat per se, and conductors are those which allow the heat or electricity to pass through them. और बेस्ट एग्जाम्पल्स प्लास्टिक हो गया या फिर द वुड है। तो ऐसी चीज यूजुअली हम प्रेफर करते हैं स्विच ऑन, लाइक आप रबर की चप्पल पहन के स्विच ऑन किया करें ताकि आपको करंट ना आए। व्हाई? बिकॉज ये इंसुलेटर्स की तरह काम करते हैं एंड दे डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट। तो इन्हीं के बीच का एक आता है सुपर, बीच का नहीं बोलूंगी एक्चुअली, इट इज बेटर देन कंडक्टर। तो ये है आपके पास सुपर कंडक्टर, यानी कि मटेरियल का वो स्टेट जिसमें वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है। तो कंडक्टर तो समझ में आ गया, बट इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं दिखेगा। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप इसके साइंस इंजीनियरिंग के पीएचडी में ना जाइएगा, आपको इसको यूपीएससी की कंटेक्स्ट में पढ़ना है, यानी न्यूज में क्यों है, इसका एप्लीकेशन क्या है, दैट्स इट। डोंट गो इन द डिटेल of the semiconductors, the resistance, the meters, the switches, right? That is, अगर आपको इंजीनियरिंग करना है तो आप उसको समझ सकते हो। हमारा फोकस है कि why it is in the news। आप इसको ब्रीफ में बहुत ही ब्रॉडर वे में समझ सकते हो, दैट दे आर कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी इन सच अ वे where they do not find any resistance। इनको यहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस नहीं मिलता है। तो ये बहुत सारी मटेरियल्स में ऑब्जर्व किया गया जब उनको ठंडा किया जाता है बिलो अ क्रिटिकल टेम्परेचर। तो दैट इज योर सुपर कंडक्टर। अब ये न्यूज में क्यों है, देखो, साउथ कोरिया के साइंटिस्ट है, उन्होंने रिसेंटली क्लेम किया है दैट दे हैव डिस्कवर्ड अ मटेरियल जिसका नाम उन्होंने दिया है LK99। देखो सारी कहानी एक तरफ, आप ये LK99 जरूर रखिए ना, बिकॉज यूपीएससी का ना ये फेवरेट सेक्शन होता है that LK99 is recently seen in the news regarding what? पहला ऑप्शन आ जाएगा इट इज अ जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा इट इज अ सेमी कंडक्टर, थर्ड ऑप्शन आ जाएगा आपके पास दैट इट इज अ लॉ पास बाय अ कंट्री। आपको हवा ही नहीं लगेगी कि ये कौन से सब्जेक्ट का है, ये साइंस का है या आर्ट्स का है, ये क्या है। तो आप इस LK99 को रट लीजिएगा, ठीक है, बिकॉज वहां पे ऑप्शंस बहुत ही सिमिलर आते हैं। दैट रिसेंटली the South Korean scientists have claimed the discovery of a material which says LK99। So according to the report, it is a superconductor which is at a room temperature and a pressure। ठीक है। नाउ अब ये जो ग्राउंड ब्रेकिंग क्लेम वो कर रहे हैं, इसमें सारी साइंटिस्ट की कम्युनिटीज का पूरा एक इंटरेस्ट जाग उठा है, बिकॉज ये पूरी तरह से रिवोल्यूशनाइज कर देगा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को और टेक्नोलॉजी को। ठीक है। नाउ व्हाट डज द क्लेम ऑन द डिस्कवरी सजेस्ट? सबसे पहले एक्सप्लोरिंग द एपेटाइट मटेरियल। तो साउथ ग्रुप की जो डिस्कवरी हुई है, दे इन्वॉल्व अनएक्सपेक्टेड मटेरियल जिसको बोलते हैं एपेटाइट। तो एपेटाइट वो मिनरल्स होते हैं जो फॉस्फेट स्कैफोल्ड के साथ में टेट्राहाइड्रल मोटिफ लाइक सराउंडेड बाय 4 ऑक्सीजन का एटमॉस्फेयर बनाते हैं। डोंट गो इन द डिटेल, जस्ट रिमेंबर अबाउट द LK99। देन ये आपको एविडेंस भी देता है कि हाँ सुपर कंडक्टिविटी एग्जिस्ट करती है,
बिकॉज ये जो ग्रुप है वो बोलता है कि 10% यहाँ पे कॉपर सब्सटीट्यूशन हुआ है एंड थर्ड implications ऑफ द LT99। तो यहाँ पे इनको बार बार लिखने का मेरा ऑब्जेक्टिव यही था कि आपको ये जो LT99 है ये रट जाए, दैट LT99 was recently in the news regarding what? It was in the news regarding a semiconductor, sorry, the superconductor. Now, फिर यूपीएससी जो है हमेशा साइंस के क्वेश्चंस पे एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करती है। तो यहाँ पे 4 एप्लीकेशन दे देगी और पूछेगा कि इनमें से कौन सी एप्लीकेशन जो है पॉसिबल है, करेक्ट। तो एनर्जी ट्रांसमिशन में ऑब्वियसली ये काम आएगा। जो एमआरआई होती है, जब आपकी कोई चोट लग जाती है, एमआरआई होती है, वहां पे ये काम आता है। पार्टिकल एक्सीलरेटर्स, इलेक्ट्रिकल मोटर्स, जनरेटर्स, एक्चुअली इन शॉर्ट आप कोई भी ये जो टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग रिलेटेड उनका में ऑब्वियसली ये काम आएगा बिकॉज इट इज समहाउ हेल्पिंग यू टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। ऑलराइट, तो आई होप एब्सोल्युटली ये दोनों जो टॉपिक्स आपको क्लियर हो चुके हैं। एंड वन मोर थिंग, मुझे काफी स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि द वॉइस इज नॉट क्लियर। I'm so sorry for that. We are definitely trying to improve that. We are trying lots of things. Soon you will get the good voice as well, and your eyes will not be irritating. Till now, I can request you आप अपनी ब्लूटूथ पे ईयरफोन्स पे जिससे भी आप सुन रहे हो आप थोड़ा सा उसको वॉल्यूम कम करिए, आपको प्रॉपरली सुनाई देगा। इट इज नॉट अनोइंग दैट मच। ऑलराइट, so that's it. And all the valuable feedbacks are always welcome. So thank you so much. Please do subscribe our channel IS Cafe.